قورمہ بھی نہیں کھایا, میں تو کبھی لنگر ہی نہیں کھاتا. یہ بات یاد رکھیں, گھر کی روٹی اور ہے, اللہ کے ولی کے در کا لنگر اور ہے. کیا بات ہے, کبھی برابری نہیں ہو سکتی ہے. حاضرین محترم, تو مالک یہ لقمے کا حیا کرتے ہوئے, ایک ولی کے دسترخوان کے لقمے کا حیا کرتے ہوئے, نسبت اتنی بڑی چیز ہے. حاضرین محترم, تو پتہ چلا کہ عمل کو چاہے تو قبول کرے یا رد کر دے, مگر نسبت کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے. اگر تو وہ بندہ کہے گا کہ میں کبھی گیا ہی نہیں, میں نے لنگر ہی نہیں کھاتا, پھر تک وہ بھابی ٹائپ کا بندہ بنا ہے. وہ جیڑا کدی رونے روٹی بھی دکھاتی, وہ لنگر واسطے بھی نہیں گیا. تو حاضرین محترم, تو لقمے کا, اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو صحیح بخاری اٹھائیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے, بنی اسرائیل کی وہ عورت, فاحشہ عورت ہے, بدکار عورت ہے, زمانے کی رقاصہ ہے. لوگ جس کا ناچ گانا دیکھنے کے لیے آتے ہیں, جو لوگوں کو بدکاری کی طرف راغب کرتی ہے. رات کا وقت ہے, ناچ گانا کر کے جب گھر کو جا رہی ہے, اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا تھا, حلق سے زبان باہر آ رہی ہے پیاس کی وجہ سے. اس سے رہا نہ گیا, اس نے پانی کی تلاش میں کنواں دیکھا, کنویں کے قریب گئی, دیکھا کہ پانی نیچا ہے لیکن نہ رسی ہے نہ ڈول ہے. اس نے گلے سے دوپٹہ اتارا, اس نے پیر کی جوتی کو برتن بنایا, باندھا اور نیچے لٹکایا, چند چلو بھر پانی لے کر اس کتے کو پلا دیے. بخاری کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس کتے کا حیا کرتے ہوئے اس فاحشہ عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے, جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں, جو مالک کتے کا حیا کرتے ہوئے جنت عطا فرما سکتا ہے, اپنے ولی کا حیا کر کے جنت کیوں نہیں عطا فرما؟ کیا بات, کیا بات. پتہ چلا کہ عبادات رد ہو سکتی ہیں, مگر نسبت کبھی رد نہیں ہو سکتی. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. بہت اعلیٰ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا شخص کے جس نے 500 سال سجدہ کیا, کتنے سال؟ 500 سال. 500 سال تک اس نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کی, اے اللہ مجھے موت بھی آئے تو سجدے کی حالت میں آئے. سبحان اللہ. اللہ نے دعا قبول کر لی, موت بھی اس کی سجدے کی حالت میں آئی. سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت فرمائے گا, ہاں میرے بندے کیا میں نے تجھے معاف کیا, میں نے تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت عطا کر. سبحان اللہ. بڑو بندہ آکھے گا کہ باری تعالیٰ میں 500 سال تیری عبادت کی تھی, وہ میرے 500 سال دے سجدے بھی تک اسے کھاتے چھپا, میری عبادت کا کوئی اجر نہیں کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے, بجائے اس کے کہ تو یہ کہتا کہ میں نے تیری عبادت کس وجہ سے تجھے جنت عطا کی ہے, تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے صدقے, بے شک, اپنی رحمت کی وجہ سے تجھے جنت عطا کی ہے. اللہ فرمائے گا کہ چونکہ تیری ایک صفت عادل بھی ہے, تیری ایک صفت کیا ہے, میں عدل کرنے والا ہوں. ابا تو نے مطالبہ کیا ہی ہے نا, ابا میزان پر تیری عبادات کو تولتے ہیں, تو نے مطالبہ کیا ہے کہ تیری عبادات کا اجر دیا جائے, اب آپ میزان پر. اللہ فرمائے گا لگاؤ تکڑی بیٹا, اس کی عبادات کو تولا جائے. ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت کو سجدوں کو رکھا جائے گا, اور دوسرے پلڑے میں اس کی آنکھ کو نکال کر رکھا جائے گا. اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں, ایک پلڑے میں میری عطا کی گئی نعمت ہے, آنکھ میری نعمت ہے, اور دوسرے پلڑے میں 500 سال کے اس کے سجدے ہیں. اب وزن کیا جائے, جب وزن ہوگا تو اللہ کی ایک عطا کردہ آنکھ کے برابر بھی اس کی سجدے برابر نہیں ہوں گے. اللہ فرمائے گا کہ تو مانگتا تھا اجر اپنے 500 سال کی عبادات کا, تو میری ایک آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکتا. تو پوری نعمت جو میں نے جسم عطا کیا, ہاتھ دیے اور تجھے پیر دیے, سانسیں عطا کی, زندگی عطا کی, اس کا تو بدلہ کیسے دے سکتا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ آکے گا کہ باری تعالیٰ میں مان گیا بے شک کہ تو میری عبادات کا تو بدلہ نہیں دے سکتا, اپنی رحمت کے صدقے مجھے جنت عطا فرما. سبحان اللہ. تو چاہے تو وہ عبادت قبول کرے یا رد کر دے, اس کی مرضی ہے. جس نے بھی جنت میں جانا ہے اس کی
रहमत की वजह से और निस्बत की वजह से। और ये बात याद रखिए कि निस्बत बड़ा फायदा देती है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों सुनो, मैंने अपनी बेटी ज़हरा का नाम फातिमा इसलिए रखा है, इन्नल फातिमाता व मुहिब्बीहा व ज़ुर्रियतहा, फरमाया कि अनिन्नार, हुजूर फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है, फातिमा और इसकी सारी ज़ुर्रियत, क़यामत तक आने वाली औलाद और इसका हया करने वाले और इससे मोहब्बत करने वाले जितने लोग होंगे, अल्लाह ताला उन सबको दोज़ख से दूर रखेगा और जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक नाम की बरकत है। बेशक, बेशक। हाज़रीन मोहतरम, ये आखड़ा के दिन नहीं दिया पीना कुल जाते हो, बैत करते हो जाके, इनका की फायदा है? बैत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भी तो नमाजों का कहना है। तो अभी मैंने आपको बात बताई है कि वो मालिक है, चाहे तो नमाजें कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे, मगर कोई जिंदगी में ऐसा बंदा हमारे पास होना चाहिए, ऐसी निस्बत होनी चाहिए जो कयामत के दिन अगर इबादतें रद्द भी हो जाएं तो निस्बत हमारे काम आ जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने हदीस पाक तो सुनी होगी कि जो दोस्ती होंगे उनको एक एक करके दोज़ख में नहीं डाला जाएगा, बल्कि दोस्तियों की एक सफ बनाई जाएगी, एक ग्रोह बनेगा, एक वली कामिल का गुजर होगा, उस सफ में से उनमें से एक बंदा उस वली को पहचानेगा और पहचान कर बोल कर ऊंची बात से कहेगा, या हजरत, वो वक्त याद करें कि मैंने एक दिन आपको वुजू करवाया, मैं आपकी खिदमत में आया था, मैंने आपकी फला वक्त में खिदमत की थी। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला उस वली की सिफारिश में, उसकी सिफारिश को सुनकर उसको दोज़ख की सफ में से निकालकर जन्नत के अंदर दाखिल करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान औलिया। हाज़रीन मोहतरम, तो पता चला कि निस्बत बड़ा फायदा देती है। इसलिए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11वीं शरीफ का एहतमाम करते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरी औलाद में से अगर किसी शख्स ने मेरी औलाद में से किसी के हाथों में हाथ दिया, बैठ की, और अगर वो मेरी औलाद का वो शहजादा अगर वो कामिल ना हुआ, अगर वो इस काबिल नहीं, इबादत इतनी नहीं, वो इतना जो है उस मुकाम तक नहीं पहुंचा हुआ, फरमाया ऐसे करो, हाथ उसके हाथ में दे दो, उसको ना देखो, ये देखो कि उसका बाबा कितना अजीम है। सुभान अल्लाह। उसका बाबा देखो, अगर बाबा भी, उसका वालिद भी उस तरह का नहीं है, फरमाया उसके बड़े बुजुर्ग को देखो। कहा कि अगर उसका बड़ा बुजुर्ग भी इस काबिल नहीं है तो कहा कि फिर घबराओ ना, मैं गौस तो उत्ते बैठा ना, सुभान अल्लाह। ऊपर तो मेरी लड़ी है। हाज़रीन मुकर्रम, मैंने आज सबसे बड़ा सिलसिला देखा है कायनात के अंदर, तो वो सिलसिला कादरिया देखा। सुभान अल्लाह। बहुत तमाम सलासिल से बड़ा सिलसिला, सिलसिला कादरिया, हुजूर गौस पाक का सिलसिला है। ये आजकल के दौरे हाजिर के अंदर जो बैत हो रही है, पहले ऐसे नहीं होती थी। ये जब से मौलवी पीर बनने लगे हैं ना हाज़रीन मोहतरम, तब से ये सिलसिला भी खराब हो गया। अल्लामा इकबाल ने कहा, अल्लामा, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो मदरसे में जाते हुए ये यजीद को कहे कि अमीरुल मोमिनीन कहो, कि जो मैं सिखाते हमेशा मैं का दर्स देते हैं। वली की मजलिस वो होती है कि जो मैं खत्म करता है। एक बंदा आया सवाल करने के लिए एक वली कामिल की मजलिस में, उसने कहा कि मैंने सुना है कि कभी भी वली मैं नहीं कहता। कहा कि मैं सवाल ही ऐसा करूंगा कि इसकी जुबान से खुद ब खुद मैं निकल आएगा। उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हुक्म दिया था फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो फिर शैतान ने क्या कहा था, आना खैर, मैं बेहतर हूँ। कहा ये वली खुद कहेगा कि मैं बेहतर हूँ, तो मैं का लफ्ज आया या नहीं आया? तो उसने सवाल किया, नमाज असर का वक्त था, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि नमाज पढ़ लो फिर तुम्हें जवाब देता हूँ। जब नमाज हो गई, आप फरमाने लगे तुम में से कौन था कि जिसने सवाल किया था? वो बंदा खड़ा होकर कहने लगा हजरत मैं। फरमाया यही तेरे सवाल का जवाब है। तो
वली की मजलिस होती वो है कि जो मैं खत्म कर देती। क्या बात, तो ये आस्ताने जो इंसान को आर्जी सिखाते हैं, बेशक इनकिसारी सिखाते हैं, मैं खत्म करते हैं। हुजूर गौसे पाक जब बैत लेते थे, मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ, सुनिएगा, शायद किसी को पेट में मरोड़ उठने लगे, ढूंढते रहे। हुजूर गौसे पाक जैसी हस्ती जब बैत लेते थे, शाह मोहम्मद गौस की किताब इसरार मार्फत, उसमें यह बात लिखी है। आप बैत लेने के बाद हुजूर गौसे पाक फरमाते थे, ऐ मेरे मुरीद ये पढ़, अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीना व इमामुल मुत्तकीना वसीयु रसूलिल्लाह अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह। गौस पाक नहीं कहता। आजकल ऐसी अगर कोई बैत ले लो तो पिंडो काट देना भाई, ये तो बंदा शिया हो गया। क्यों भी इसने अलीयुल वलीयुल्लाह का नारा लगा दिया। मुझे ये बताएं, अरबी के अंदर पहले सबसे पहले हम मिलकर कहते हैं कि हजरत अली अल्लाह के वली हैं। आप भी कहें हजरत अली अल्लाह के वली हैं। और एक जुमला पंजाबी चाखो, हजरत अली अल्लाह दे वली ने, ते अगर अरबी चाखो अलीयुल वलीयुल्लाह, अलीयुल, फिर किस चीज का दर्द है? तो पता चला कि वो अंदर छुपा हुआ बुग़्ज़ है। अली से बुग़्ज़ भी और हज की ख्वाहिश भी, अली से बुग़्ज़ भी और हज की ख्वाहिश भी। अरे इबादतों का भी कोई उसूल होता है। तू अली की जाए विलादत से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत आला। उस वक्त के तो मुनाफिकीन माया कायनात से दूर रखते थे, इस वजह से क्योंकि अली ने उनके बड़ों को मारा था। अली ने उन्होंने बड़िया नु बढ़िया, हाँ, ते जेड़े हुण हैं उन्होंने भी बड़िया नु मारे अली ने। रखते हैं वही बुग़्ज़ हैदर कर्रार से जिनके बड़े मारे गए जुल्फ़कार से। सुभान अल्लाह। रखते हैं वही बुग़्ज़। अली राम को बुग़्ज़ रखे, ऐना तू नहीं कमिया, ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जमिया। अली नहीं, तो उस मौके पर कुरान की आयत उतरी सूरतुल माइदा की, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। ऐ रसूल, वो इन लोगों में बता दीजिए जो अल्लाह ने आप पर नाजिल किया है। अगर आपने लोगों को ना बताया तो रिसालत का हक अदा हो ही नहीं सका। रिसालत का हक अदा न हुआ तो आका इस्लाम ने 1.25 लाख मजमे के सामने ऐलान फरमाया, फ़अख़ज़ बियदि अलीय्यन फ़क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुल मौला। 1.25 लाख सहाबा के सामने मेरे आका ने फरमाया, अगर मैं तुम्हारी जानों का वली हूँ फिर सुन लो, जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ उसका अली मौला। हजरत अली की विलायत का ऐलान खुद मेरे आका फरमा रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह तू उसका वली बन जो अली को वली माने, तो उसको दुश्मन रख के जो अली से दुश्मनी रखे। हजरत उमर इब्न खत्ताब आगे बढ़े, उन्होंने कहा, बख बख लक या अली इब्न अबी तालिब, अली तुझे मुबारक हो कि नबी ने तुझे हमारा मौला बना दिया है, और तू सिर्फ मेरा ही मौला नहीं है, कयामत तक आने वाले हर मोमिन का तू मौला बन चुका है। ये तो ऐलान खुद हजरत उमर इब्न खत्ताब का है। हाज़रीन मुकर्रम, ये वो निस्बत है, ये वो विलायत अली की निस्बत है कि जहाँ बड़ी बड़ी इबादत काम नहीं आती वहाँ निस्बत अली क़यामत के दिन जरूर। इस निस्बत को हासिल करने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मुतालिक एक हदीस बयान करता हूँ। मदीनतुल मुनव्वरा है, हजरत उमर का बेटा और मौला अली का बेटा हजरत इमाम हसन मुज्तबा, सब कहें अलैहिस्सलाम। और मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, याद रखिएगा कि खुलाफाए राशिदीन 4 नहीं है, 5 हैं। कितने खुलाफाए बोलिए? 5 हैं। 5वें खलीफा राशिद हजरत इमाम हसन मुज्तबा। सरकार ने फरमाया मेरे बाद जो खिलाफत राशिदा है वो 30 साल होगी।
6 महीने इमाम हसन की खिलाफत अगर शामिल नहीं करते, खिलाफत राशिदा पूरी होती नहीं है। सैयद शमशुर रहमान मशहदी उन्होंने एक जुमला कहा था, आप फरमाने लगे, पंजतन बाग से जो दूर हुआ हक का रास्ता भूल गया। पंजतन बाग से जो दूर हुआ हक का रास्ता भूल गया। राशिद खुलाफा 5 ही हैं, क्यों हसन को लिखना भूल गया। राशिद खुलाफा 5 ही हैं, क्यों हसन को लिखना भूल गया। है राह मशहदी लोगों पर ये बुग़्ज़ नहीं तो और है क्या। अबू लहब की उंगली याद रही, अबू तालिब सारा भूल गया। क्या बात। हजरत अबू तालिब का जिक्र क्यों नहीं होता। हजरत अबू तालिब का जिक्र फकत इसलिए नहीं होता कि वो अली का बाप है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा बिनते असद का जिक्र क्यों नहीं होता, अली की माँ है। माँ है। फकत इस वजह से उन हस्तियों का स्टेजों के ऊपर जिक्र नहीं होता। और ये बात याद रखें, हमारे नाथ खां हजरात अक्सर एक जुमला कह देते हैं, सलाम उस पर जिसके घर में न सोना था न चांदी थी, सलाम उस पर के बोरिया बिस्तर जिसका बिछोना था न चटाई थी। इस तरह के जुमले के सरकार के घराने को कांतार कहकर स्टेजों के ऊपर बयान किया जाता है। और मैनू ये गल दसो कि जिस दे दादे हजरत अब्दुल मुत्तलब दे 200 उठ यमन दा बादशाह अबरा चोरी कर लवे, वो गरीब घराना है। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद, उनको बचाने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट कुर्बान किए, वो गरीब घराना है। हजरत हाशिम सरकार के परदादा जान, जिनकी निस्बत से बनु हाशिम है, हजरत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में कहर पड़ा, आपने दूसरे मुल्क हिजरत की, वहां जाकर रोटियां खरीद के ले आए और आकर लोगों से कहा, इसके टुकड़े टुकड़े करो, शोरबा बनाओ, गोश्त डालो और हाजियों को खिलाओ। और 3 दिन मेहमान आ जाए तो बंदा परेशान हो जाता है, ना जाना कदू है। तो जो हाजियों को खाना खिलाए लाखों की तादाद में और मीठा पानी पिलाए, शरबत पिलाए, वो गरीब घराना है। हजरत अबू तालिब वो हस्ती है कि जिनके पास हजरत अब्दुल मुत्तलब की वरासत में से 9 मन सोना था। 9 मन सोना जिसके पास हो, वो गरीब घराना है। अल्लाह अकबर। तो 9 मन सोना गया कितने, कहां गया। वो दीन इस्लाम के लिए सरकार ने सारा कुर्बान कर दिया। हजरत अबू तालिब का माल काम आया और जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा का माल काम आया। ये 2 हस्तियों ने कुर्बानियां दी हैं। हाज़रीन मोहतरम, हजरत अबू तालिब वो हस्ती है कि जिनके घर के अंदर तौहीद की पहली दावत होती है, इस्लाम की पहली दावत होती है। इसको दावत ज़ुल अशीरा कहा जाता है। बकरे पकाए गए, पहले दिन बड़े बड़े चौधरी आ गए, बड़े बड़े मक्का के काफिर वहां पर जमा हुए, किसी ने बात ही नहीं सुनी, खाना खाया, सारे निकलने लगे। दूसरे दिन फिर खाना बनाया, बकरों का गोश्त पका, किसी ने बात ही नहीं सुनी। तीसरा दिन जब आया ना, हजरत अबू तालिब दरवाजे पे खड़े हो गए। एक चिक्कड़ चौधरी उठिया, वो खड़ा हुआ, जान लगा ना उसने जरा शरारत करने की कोशिश की थी, बाकियों को भी कह रहा था उठो चलो, हमने बात नहीं सुननी। हजरत अबू तालिब के हाथ में असा था, आप फरमाने लगे, इजलिस या हिमार, ओ खोतिया बैठ के मोहम्मदी गल सुन के। सब सरदारा दा सरदार अबू तालिब। तो उस मौके पर कुरान की आयत उतरी सूरतुल माइदा की, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल वो इन लोगों में बता दीजिए जो अल्लाह ने आप पर नाजिल किया है। अगर आपने लोगों को ना बताया तो रिसालत का हक अदा हो ही नहीं सका। रिसालत का हक अदा ना हुआ तो आकर इस्लाम ने 1.25 लाख मजमे के सामने ऐलान फरमाया, फ़अख़ज़ बियदि अलीय्यन फ़क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुल मौला। 1.25 लाख सहाबा के सामने मेरे आका ने फरमाया, अगर मैं तुम्हारी जानों का वली हूँ फिर सुन लो, जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ उसका अली मौला। हजरत अली की विलायत का ऐलान खुद मेरे आका फरमा रहे हैं। तो आकर इस्लाम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह तू उस
उसका वली बन जो अली को वली माने, तो उसको दुश्मन रख के जो अली से दुश्मनी रखे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब आगे बढ़े, उन्होंने कहा बख बख लका या अली इब्ने अबी तालिब, अली तुझे मुबारक हो कि नबी ने तुझे हमारा मौला बना दिया है, और तू सिर्फ मेरा ही मौला नहीं है, कयामत तक आने वाले हर मोमिन का तू मौला बन चुका है। ये तो ऐलान खुद हजरत उमर इब्ने खत्ताब का है। हाज़रीन मुकर्रम, ये वो निस्बत है, ये वो विलायत अली की निस्बत है कि जहां बड़ी बड़ी इबादत काम नहीं आती, वहां निस्बत अली कयामत के दिन जरूर आती। इस निस्बत को हासिल करने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी मुतालिक एक हदीस बयान करता हूं, मदीनतुल मुनव्वरा है। हजरत उमर का बेटा और मौला अली का बेटा हजरत इमाम हसन मुज्तबा, सब कहें अलैहिस्सलाम। और मैं एक जुमला देना चाहता हूं, याद रखिएगा कि खुलाफाए राशिदीन 4 नहीं है, 5 हैं। कितने खुलाफाए बोलिए? 5 हैं। 5वें खलीफा राशिद हजरत इमाम हसन मुज्तबा। सरकार ने फरमाया मेरे बाद जो खिलाफत राशिदा है वो 30 साल होगी। 6 महीने इमाम हसन की खिलाफत अगर शामिल नहीं करते, खिलाफत राशिदा पूरी होती नहीं है। सैयद शमशुर रहमान बशरी, उन्होंने एक जुमला कहा था, आप फरमाने लगे पंजतन बाग से जो दूर हुआ हक का रास्ता भूल गया, पंजतन बाग से जो दूर हुआ हक का रास्ता भूल गया, राशिद खुलाफा 5 ही हैं, क्यों हसन को लिखना भूल गया। राशिद खुलाफा 5 ही हैं, क्यों हसन को लिखना भूल गया। हैरान है मशहदी लोगों पर ये बुग़्ज़ नहीं तो और है क्या, अबू लहब की उंगली याद रही, अबू तालिब सारा भूल गया। क्या बात। हजरत अबू तालिब का जिक्र क्यों नहीं होता? हजरत अबू तालिब का जिक्र फकत इसलिए नहीं होता कि वो अली का बाप है। हजरत फातिमा बिनते असद का जिक्र क्यों नहीं होता? अली की माँ है। फकत इस वजह से उन हस्तियों का स्टेजों के ऊपर जिक्र नहीं होता। और ये बात याद रखें, हमारे नाथ का हजरात अक्सर एक जुमला कह देते हैं, सलाम उस पर जिसके घर में न सोना था न चांदी थी, सलाम उस पर के बोरिया बिस्तर जिसका बिछोना था न चटाई थी। इस तरह के जुमले के सरकार के घराने को कांतार कहकर स्टेजों के ऊपर बयान किया जाता है। और मैनू ये गल दसो कि जिस दे दादे हजरत अब्दुल मुत्तलिब दे 200 उठ यमन दा बादशाह अबरा चोरी कर लवे, वो गरीब घराना है। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद, उनको बचाने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट कुर्बान किए, वो गरीब घराना है। हजरत हाशिम सरकार के परदादा जान, जिनकी निस्बत से बनु हाशिम है, हजरत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में कहर पड़ा, आपने दूसरे मुल्क की हिजरत की, वहां जाकर रोटियां खरीद के ले आए और आकर लोगों से कहा इसके टुकड़े टुकड़े करो, शोरबा बनाओ, गोश्त डालो और हाजियों को खिलाओ। और 3 दिन मेहमान आ जाए तो बंदा परेशान हो जाता है, ना जाना कदू है। तो जो हाजियों को खाना खिलाए लाखों की तादाद में और मीठा पानी पिलाए, शरबत पिलाए, वो गरीब घराना है। हजरत अबू तालिब वो हस्ती है कि जिनके पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वरासत में से 9 मन सोना था। 9 मन सोना जिसके पास हो, वो गरीब घराना है। अल्लाह अकबर। तो 9 मन सोना गया कितने, कहां गया? वो दीन इस्लाम के लिए सरकार ने सारा कुर्बान कर दिया। हजरत अबू तालिब का माल काम आया और जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा का माल काम आया। ये 2 हस्तियों ने कुर्बानियां दी हैं। हाज़रीन मोहतरम, हजरत अबू तालिब वो हस्ती है कि जिनके घर के अंदर तौहीद की पहली दावत होती है, इस्लाम की पहली दावत होती है। इसको दावत ज़ुल अशीरा कहा जाता है। बकरे पकाए गए, पहले दिन बड़े बड़े चौधरी आ गए, बड़े बड़े मक्का के काफिर वहां पर जमा हुए, किसी ने बात ही नहीं सुनी, खाना खाया, सारे निकलने लगे। दूसरे दिन फिर खाना बनाया, बकरों का गोश्त पका, किसी ने बात ही नहीं सुनी। तीसरा दिन जब आया ना, हजरत अबू तालिब दरवाजे पे खड़े हो गए। एक चिक्कड़ चौधरी उठिया, वो खड़ा हुआ, जान लगा ना उसने जरा शरारत करने की कोशिश की थी, बाकियों को भी कह रहा था उठो चलो, हमने बात नहीं सुननी। हजरत अबू तालिब के हाथ में असा था। आप फरमाने लगे
इजलिस या हिमार ओ खोदिया बैठ के मोहम्मद दी गल सुन के सब सरदारा दा सरदार अबू तालिब सोना खाना चाहते हजूर का घराना कम तर घराना नहीं बल्कि तमाम घरानों से अफजल और आला। आओ मेरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना। हजूर की खिदमत में जब भी कोई आता था, साइल मेहमान आता था, हजूर फरमाते थे इसको दरे ज़हरा पर ले जाओ, वहां से खाना खिलाओ। क्यों? गोया हुजूर अगर चाहते अपनी अज़वाज के घर से भी खाना मंगवा सकते थे, बीवियों के घर नहीं भेजा। गोया हुजूर बताना चाहते हैं ज़माने भर में जो बट रहा है वो तेरे घर का अनाज ज़हरा। सारी कायनात के अंदर जिसको भी रिस्क मिलता है वो ज़हरा की चक्की का सदका, उन्हीं के दर से सब कुछ चल रहा है। अल्लाह अकबर। हाज़रीन मुकर्रम, तो मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत सैयदना इमाम हसन मुस्तफा मदीना की गली है। हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दोनों गली में खेल रहे हैं। एक अजनबी बंदा है, उसने आकर पूछा कि यहाँ पर सुल्तान मदीना का घर कौन सा है? सुल्तान मदीना कौन है? क्योंकि वक्त के हाकिम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर थे। उसने आकर जब ये सवाल किया तो चूंकि हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला भी थे, उन्होंने अपने बाप के घर की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि सुल्तान मदीना का घर वो देख रहे हो मदीना के फला कोने की गली में, वो मेरे बाबा का घर, उमर का घर, वो वक्त के हाकिम और सुल्तान मदीना वो है हजरत इमाम हसन मुज्तबा। उनसे ये बात बर्दाश्त न हुई। आपने फरमाया उसने सुल्तान मदीना का पूछा है, गुलाम मदीना का नहीं पूछा। और तेरा बाप तो हमारा गुलाम ज़्यादा है, वो तो मेरे नाना का गुलाम है। तो लिहाजा सुल्तान मदीना का अगर बताना है अपने बाप के घर की तरफ इशारा न कर, मेरे नाना के गुंबद खजरा की तरफ इशारा। उस अजनबी शख्स के सामने जब ये जुमला कहा, साथ में थप्पड़ भी रसीद कर दिए इमाम हसन ने। तो बड़ी अजीब बात लगी, एक अजनबी बंदे के सामने बेइज्जती भी हो गई और थप्पड़ भी मारा गया। भागते हुए गए, बचपना था ना। हजरत अब्दुल्ला अपने बाप के पास गए और जाकर कहने लगे, बाबा आज इमाम हसन ने अच्छा नहीं किया। कहा हुआ क्या बेटे? कहा एक अजनबी बंदे के सामने मेरी उसने बेइज्जती कर दी और उसने ये कहा, मैं वो जवाब में उसने कहा कि तू गुलाम ज़ादा है, तू मेरे नाना के गुलाम का बेटा है। ये जुमला उसने कहा। हजरत उमर ने जब ये सुना, आप वजद में आया। आप फरमाने लगे, ऐ बेटे अब्दुल्ला ये बता, क्या वाकई हसन ने ये कहा है कि हम उनके नाना के गुलाम हैं? क्या वाकई उसने ये जुमला कहा है? कहा हाँ हाँ उसने कहा है। कहा बेटे मेरे साथ चल। उंगली पकड़ी, उंगली पकड़कर मौला अली के दरवाजे पर आ गए, दस्तक दी। इमाम हसन आए और इमाम हसन से पूछा हजरत उमर ने, कहा हसन ये बता, क्या आपने ये जुमला कहा है कि मैं आपके नाना का गुलाम हूँ? कहा हाँ हाँ मैं अब भी कहता हूँ कि आप हमारे गुलाम हैं, अब भी कहता हूँ आप हमारे गुलाम हैं। अब ये जुमला कहा। हजरत उमर ने कागज लिया, कलम लिया और कहा हसन तुझे खुदा का वास्ता है ये लिख दे कि उमर आपका गुलाम है, लिख के दे दे। इमाम हसन ने लिख दिया अब्द मुस्तफा, ये लक़ब दिया। ये लक़ब लेने के बाद हजरत उमर ने चूमा, आंखों पर लगाया और घर आए। घर आकर बताने लगे, जब मैं मर जाऊं, इस दुनिया से चला जाऊं, नकीरैन मुझसे पूछे क्या लाए हो, मैं कहूंगा हसनैन के घर की निस्बत साथ ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अस्ताना आलिया पीर सैयद आलिम हुसैन गिलानी साहब। माशाअल्लाह। हाज़रीन मुकर्रम, सोना खाना चाहते हजूर का घराना कम तर घराना नहीं बल्कि तमाम घरानों से अफजल और आला। आओ मेरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना। हजूर की खिदमत में जब भी कोई आता था, साइल मेहमान आता था, हजूर फरमाते थे इसको दरे ज़हरा पर ले जाओ, वहां से खाना खिलाओ। क्यों? गोया हुजूर अगर चाहते अपनी अज़वाज के घर से भी खाना मंगवा सकते थे, बीवियों के घर नहीं भेजा। गोया हुजूर बताना चाहते हैं ज़माने भर में जो बट रहा है वो तेरे घर का अनाज ज़हरा। सारी कायनात के अंदर जिसको भी रिस्क मिलता है वो ज़हरा की चक्की का सदका, उन्हीं के दर
सब कुछ चल रहा है। अल्लाह अकबर। हाज़रीन मुकर्रम, तो मैं अर्ज़ कर रहा था हजरत सैयदना इमाम हसन मुस्तफा मदीना की गली है। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दोनों गली में खेल रहे हैं। एक अजनबी बंदा है, उसने आकर पूछा कि यहाँ पर सुल्तान मदीना का घर कौन सा है? सुल्तान मदीना कौन है? क्योंकि वक्त के हाकिम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर थे। उसने आकर जब ये सवाल किया तो चूंकि हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला भी थे, उन्होंने अपने बाप के घर की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि सुल्तान मदीना का घर वो देख रहे हो मदीना के फला कोने की गली में, वो मेरे बाबा का घर, उमर का घर, वो वक्त के हाकिम और सुल्तान मदीना वो है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा उनसे ये बात बर्दाश्त न हुई। आपने फरमाया उसने सुल्तान मदीना का पूछा है, गुलाम मदीना का नहीं पूछा। और तेरा बाप तो हमारा गुलाम ज़्यादा है, वो तो मेरे नाना का गुलाम है, तो लिहाजा सुल्तान मदीना का अगर बताना है अपने बाप के घर की तरफ इशारा न कर, मेरे नाना के गुंबद खजरा की तरफ इशारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस अजनबी शख्स के सामने जब ये जुमला कहा, साथ में थप्पड़ भी रसीद कर दी इमाम हसन ने, तो बड़ी अजीब बात लगी। एक अजनबी बंदे के सामने बेइज्जती भी हो गई और थप्पड़ भी मारा गया। भागते हुए गए, बचपना था ना। हजरत अब्दुल्ला अपने बाप के पास गए और जाकर कहने लगे, बाबा आज इमाम हसन ने अच्छा नहीं किया। कहा हुआ क्या बेटे? कहा एक अजनबी बंदे के सामने मेरी उसने बेइज्जती कर दी और उसने ये कहा, मैं और जवाब में उसने कहा कि तू गुलाम ज़ादा है, तू मेरे नाना के गुलाम का बेटा है। ये जुमला उसने कहा। हजरत उमर ने जब ये सुना, आप वजन में आ गए। आप फरमाने लगे, ऐ बेटे अब्दुल्ला ये बता, क्या वाकई हसन ने ये कहा है कि हम उनके नाना के गुलाम हैं? क्या वाकई उसने ये जुमला कहा है? कहा हाँ हाँ उसने कहा है। कहा बेटे मेरे साथ चल। उंगली पकड़ी, उंगली पकड़कर मौला अली के दरवाजे पर आ गए। दस्तक दी, इमाम हसन आए और इमाम हसन से पूछा हजरत उमर ने, कहा हसन ये बता, क्या आपने ये जुमला कहा है कि मैं आपके नाना का गुलाम हूँ? कहा हाँ हाँ मैं अब भी कहता हूँ कि आप हमारे गुलाम हैं, अब भी कहता हूँ आप हमारे गुलाम हैं। अब ये जुमला कहा। हजरत उमर ने कागज लिया, कलम लिया और कहा हसन तुझे खुदा का वास्ता है ये लिख दे कि उमर आपका गुलाम है, लिख के दे दे। इमाम हसन ने लिख दिया अब्द मुस्तफा, ये लक़ब दिया। ये लक़ब लेने के बाद हजरत उमर ने चूमा, आंखों पर लगाया और घर आए। घर आकर बताने लगे, जब मैं मर जाऊं, इस दुनिया से चला जाऊं, नकीरैन मुझसे पूछे क्या लाए हो, मैं कहूंगा हसनैन के घर की निस्बत साथ ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अस्ताना आलिया पीर सैयद आलिम हुसैन गिलानी साहब, माशाअल्लाह। हाज़रीन मुकर्रम, ये इस निस्बत का इतना फायदा है। वो एक बुजुर्ग थे सैयद तमसील हुसैन शाह साहब, गालिबन फैसलाबाद के इलाके के हैं। उनके पास एक बंदा आ गया, उसने आकर कहा हजरत मेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कारोबार आजकल ठप हो गया, बड़ी परेशानी है, तो मेहरबानी करें कोई तवीज़ दे दें। आप फरमाने लगे ऐसे करो, जाकर अपने घर में दावत का इंतजाम करो और सरकार की दावत को हुजूर को बुलाओ, हुजूर को बुलाओ घर में। कहने लगा हजरत ये तो बात समझ में नहीं आती, 1500 साल होने वाले, 1450 साल हो गए सरकार को गुजरे, ये कैसे हो सकता है कि मैं हुजूर की दावत करूं? कहा कि नियत ये कर के मैं ऐ बारी ताला अगर आज तेरा रसूल होता तो मैं तेरे रसूल की दावत करता, तो तेरा रसूल तो मौजूद नहीं है मगर तेरे रसूल की आल तो मौजूद है, तो हुजूर के शहजादों को बुला, हुजूर की औलाद को बुला, उनकी दावत कर। क्या मैंने ऐसे ही किया। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने कारोबार में बरकत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। एक बंदा कहने लगा नहीं जी सैयद तो पहले होंगे सन, हुण तो सैयद कोई नहीं, हुण तो सैयद एवं ही नहीं, सारे सैयद खत्म हो गए। मैंने उस मौलवी साहब को जवाब दिया, मैंने कहा हजरत अगर आप ये जुमला कहते हैं तो ये हुजूर की हदीस का इनकार होता है। क्यों? मेरे सरकार ने फरमाया कुर्बे कयामत में एक सैयद के घर में मेरा एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा और उसका लक़ब महदी होगा। अगर वो सैयद नहीं थे, वो केड़े सैयद घर च बनाए?
क्या बात है। सुना फिर वो किस सैयद के घर में महदी आएगा? अरे जिसकी नस्ल कुशी की खातिर तुमने सैकड़ों जंगे की, अब भी गैर के पर्दे में उसका बेटा बाकी है। अली के लाल से हक का निशान बाकी है। अरे इमाम है तो सारा जहान बाकी है। अरे लफ्जों के जोर पे इतना ना उछलो ऐ बाइस, अली के घर का अभी एक इमाम बाकी है। सुभान अल्लाह। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद होने वाली है। और आप दुआ करते हैं ना कि अल्लाह हमें उनके लश्कर में पैदा कर दे, जो लश्कर के अंदर जमा कर दे, और जो उनके लश्कर में जमा होगा वो सीधा जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल होगा। मैं आखिरी पैगाम दे रहा हूँ हाज़रीन मुकर्रम, आज की इस मजलिस से पैगाम लेकर के जाएं। हुजूर रहमत आलम इस्लाम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने बिस्तर को पाक रखा, जिस शख्स ने अपने बिस्तर को पाक रखा, खयानत नहीं होने दी, फरमाया अल्लाह ताला उसको आले मोहम्मद का हया करने वाली औलाद अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ऐसी औलाद अता फतावा रिज़विया इमाम अहमद रज़ा खान उन्होंने लिखा, मियां बीवी आ गए हुजूर की खिदमत में, उनको अल्लाह ने एक बेटा दिया। ना बीवी के साथ रंग मिलता था, ना खामद के साथ रंग मिलता था, नैन नक्श मिलते नहीं थे। और वो औरत कहने लगी, ये घर वाला मेरे साथ झगड़ा करता है। कहा ये मेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और से तूने लिया, लिहाजा या रसूलल्लाह मेहरबानी करें, फैसला करें। हुजूर कुछ देर खामोश रहे। उसी मजलिस के अंदर हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, वो बच्चा खड़ा और खड़े होकर इमाम अली मुकाम के कदम चूमने लगा, अदब किया, एहतराम किया। हुजूर ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा को डरना, ये तेरा ही बच्चा है, हरामजादे कभी भी औलादे मोहम्मद एहतराम नहीं करते। सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद का एहतराम करने वाले, आले रसूल का एहतराम करने वाला हलाल ज़ादा भी होगा और पक्का मोमिन भी होगा। सुभान अल्लाह। मुकद्दम जब भी इस मजलिस में आए और आले रसूल के दर पर आए, इस अकीदत के साथ, इस मोहब्बत के साथ, ये निस्बत हम जरूर हासिल करेंगे और निस्बत क़यामत के लिए हमारे लिए बख्शिश कर देगा, जरूर करेगी। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल करे। जितने दोस्त तशरीफ लाए अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल करे। वमा अलैका इल्ला अल बलाग। ये इस निस्बत का इतना फायदा है। वो एक बुजुर्ग थे सैयद तमसील हुसैन शाह साहब, गालिबन फैसलाबाद के इलाके के हैं। उनके पास एक बंदा आ गया, उसने आकर कहा, हजरत मेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कारोबार आजकल ठप हो गया, बड़ी परेशानी है, तो मेहरबानी करें कोई तवीज़ दे दें। आप फरमाने लगे, ऐसे करो, जाकर अपने घर में दावत का एहतमाम करो और सरकार की दावत करो, हुजूर को बुलाओ, हुजूर को बुलाओ घर में। कहने लगा, हजरत ये तो बात समझ में नहीं आती, 1500 साल होने वाले, 1450 साल हो गए सरकार को गुजरे, ये कैसे हो सकता है कि मैं हुजूर की दावत करूं? कहा कि नियत ये कर के मैं, ऐ बारी ताला, अगर आज तेरा रसूल होता तो मैं तेरे रसूल की दावत करता, तो तेरा रसूल तो मौजूद नहीं है मगर तेरे रसूल की आल तो मौजूद है। तो हुजूर के शहजादों को बुला, हुजूर की औलाद को बुला, उनकी दावत कर। कहा मैंने ऐसे ही किया। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने कारोबार में बरकत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। एक बंदा कहने लगा, नहीं जी सैयद तो पहले होंदे सन, हुण तां सैयद कोई नहीं, हुण तां सैयद एवं ही, सारे सैयद खत्म हो गए। मैंने उस मौलवी साहब को जवाब दिया, मैंने कहा, हजरत अगर आप ये जुमला कहते हैं तो ये हुजूर की हदीस का इनकार होता है। क्यों? मेरे सरकार ने फरमाया, कुर्बे कयामत में एक सैयद के घर में मेरा एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा और उसका लक़ब महदी होगा। अगर वो सैयद नहीं थे, वो केड़े सैयद के घर में बना है? क्या बात है। सुना फिर वो किस सैयद के घर में महदी आएगा? अरे जिसकी नस्ल कुशी की खातिर तुमने सैकड़ों जंगे की, अब भी गैर के पर्दे में उसका बेटा बाकी है। अली के लाल से हक का निशान बाकी है। अरे इमाम है तो सारा जहान बाकी है। अरे लफ्जों के जोर पे इतना ना उछलो ऐ बाइस, अली के घर का अभी एक इमाम बाकी है। सुभान अल्लाह। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद होने वाली है। और आप दुआ करते हैं ना कि अल्लाह हमें उनके लश्कर में पैदा कर दे, जो लश्कर के अंदर जमा कर दे, और जो उनके लश्कर में जमा होगा वो सीधा जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल होगा। मैं आखिरी पैगाम दे रहा हूँ हाज़िरीन मुकर्रम, आज की इस मजलिस से पैगाम लेकर के जाएं। हुजूर रहमत आलम इस्लाम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने बिस्तर को पाक रखा,
जिस शख्स ने अपने बिस्तर को पाक रखा, खयानत नहीं होने दी, फरमाया अल्लाह ताला उसको आले मोहम्मद का हया करने वाली औलाद अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ऐसी औलाद अता फतावा रिजविया इमाम अहमद रजा खान उन्होंने लिखा, मियां बीवी आ गए हुजूर की खिदमत में, उनको अल्लाह ने एक बेटा दिया। ना बीवी के साथ रंग मिलता था, ना खामद के साथ रंग मिलता था, नैन नक्श मिलते नहीं थे। और वो औरत कहने लगी ये घर वाला मेरे साथ झगड़ा करता है, कहा ये मेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और से तूने लिया है, लिहाजा या रसूलल्लाह आप मेहरबानी करें, फैसला करें। हुजूर कुछ देर खामोश रहे। उसी मजलिस के अंदर हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन सुभान अल्लाह। वो बच्चा खड़ा हुआ और खड़े होकर इमाम अली मुकाम के कदम चूमने लगा, अदब किया, एहतराम किया। हुजूर ने फरमाया ऐ बंदा खुदा तू डरना, ये तेरा ही बच्चा है, हरामजादे कभी भी औलादे मोहम्मद एहतराम नहीं करते। सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद का एहतराम करने वाले, आले रसूल का एहतराम करने वाला हलाल ज़ादा भी होगा और पक्का मोमिन भी होगा। सुभान अल्लाह। हाज़रीन मुकर्रम, जब भी इस मजलिस में आए और आले रसूल के दर पर आए, इस अकीदत के साथ, इस मोहब्बत के साथ, ये निस्बत हम जरूर हासिल करेंगे और निस्बत क़यामत के दिन हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया जरूर बनेगी। मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल करे, जितने दोस्त तशरीफ लाए अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल करे। वमा अलैका इल्लल बलाग।